الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت فرمائی ہیں. فرمایا رب کائنات نے یاد کرو ابراہیم کا ذکر اس کتاب میں. یقیناً وہ مجسم سچائی تھے اور اللہ کے نبی تھے. اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ تم کیوں ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ تمہارے کوئی کام آ سکتی ہیں. اے میرے باپ مجھے علم کی ایسی روشنی مل گئی ہے جو تمہیں نہیں ملی، بس میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا. اے میرے باپ شیطان کی بندگی نہ کرو، شیطان تو خدائے رحمان کا نافرمان ہو چکا ہے. اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ خدائے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب تمہیں آ گھیرے اور تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ. یہ آیات کا ترجمہ ہے. ذی القعدہ آخر لگا ہوا ہے اور ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے جس کا تعلق حج کے ساتھ بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے قربانی اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا بزرگ و برتر کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات دنیا کے 3 بڑے مذاہب یعنی جو اسلام ہے اور یہودیت ہے اور عیسائیت ہے ان کا سرچشمہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
औलाद में से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है, और ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ सिलसिला नसब मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र बहुत बड़ा बुत परस्त था। बुत परस्त ही नहीं था बल्कि बुतों की जो फैक्ट्री थी उसका मालिक था, बुत बनाता था, बुत साज था। खुदा की कुदरत देखिए कि उसने बुत साज के घर में बुत शिकन पैदा कर दिया। मुशरिक बाप का बेटा मुवाहिद, बुतों के आगे सर झुकाने वाले का लफ्ज़े जिगर, खुदा वाहिद की तौहीद की गुण गाने वाला और खुदा वाहिद के आगे सर मसजूद होने वाला और अपने हाथों से बुतों को तोड़ने वाला एक तरफ है जो बुतों की पत्थरों को तराश खराश करके बुत बनाता है, वो बाप है। दूसरी तरफ बेटा है जो बुतों को तोड़ने वाला है। तो उस बाप के घर अल्लाह ताला ने जो बुत साज था, बुत शिकन उसके घर में पैदा कर दिया। और इसी तरह सच है कि अल्लाह की कुदरत के आगे कोई चीज हेज नहीं है। अल्लाह के लिए कोई काम भी करना मुश्किल नहीं है। वो चाहे तो पैगंबर के घर में मुशरिक पैदा कर दे। उसने नूह अलैहिस्सलाम के घर में उसका बेटा पैदा किया, वो मुशरिक था, शिरक करने वाला था। बाप लोगों को तौहीद की दावत देने वाला था। बाप ने 900 साल लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ दावत दी, अल्लाह की तौहीद की दावत दी कि अल्लाह के आगे झुक जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ। बेटा जो है वो मुखालिफ था, बेटा नहीं मानने वाला था। तो पैगंबर के घर में मुशरिक पैदा हो गया, मुशरिक के घर में पैगंबर पैदा हो गया। ये अल्लाह की काम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आंखें खोली तो घर के माहौल को देखा कि उनका बाप अपने हाथों से मूर्तियां बनाता है, बुत बनाता है और उनकी तराश खराश करता है, फिर बाजार में ले जाकर उनको फरोख्त करता है। लोग उसे खरीदते हैं, उन मूर्तियों को लोग खुदा समझते हैं कि ये खुदा हैं। उनके आगे लोग सर झुकाते हैं, उनके आगे लोग हाथ जोड़ते हैं, उनसे लोग मुरादें मांगते हैं, उनसे लोग बनोची करते हैं और हर किस्म के नफा और नुकसान का उनको मालिक समझते हैं कि यही हमारे मावा हैं, यही हमारे मर्जा हैं, यही हमारे मुश्किल कुशा हैं, यही हमारे हाजत रवा हैं। वो उनको इस तरह मानते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बातें बड़ी अजीब मालूम होती हैं। वो कहते हैं कि ये अजीब किस्म के लोग हैं। वो सोचते हैं कि मेरा बाप, ये लोग जो हैं किस कदर गुमराही में मुबतला हैं, ये किस कदर गुमराह हो चुके हैं। ज़ाहिर में आंखें खोलते ही देखते हैं, दिल की बिनाई से जो लोग महरूम हैं, बज़ाहिर तौर पर तो इनकी आंखें हैं, लेकिन ये दिल के अंधे लोग हैं। इनको मालूम नहीं है कि हक क्या है, हकीकत क्या है। और फिर ये बसारत तो है इनके पास, आंखें हैं, सब कुछ नजर आता है। नहीं नजर आता तो अल्लाह की तौहीद का नूर नजर नहीं आता, नहीं नजर आता तो अल्लाह की मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई नजर नहीं आती। और फिर ये कान रखते हैं लेकिन हक की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है, हक की आवाज को पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, सुनते नहीं है। दिमाग भी इनके हैं लेकिन दिमाग होते हुए ऐसे मालूम होता है जैसे दिमाग में इनके सर के अंदर पत्थर है जो किसी काम का नहीं है। और फिर बजाय अक्ल शऊर भी रखते हैं। तो ये सब कुछ रखते हुए भी कितने बेशऊर हैं, कितने अनजान बने हुए हैं कि इनके पास दिल भी है, दिमाग भी है, आंखें भी है और तमाम जिस्मानी आज़ा रखते हैं। अपने हाथों से जो बुत इन्होंने बनाए हैं उन्हीं को ये पूजते हैं और उनको खुदा समझते हैं। और इतने वो बुत कमजोर हैं कि उन बुतों के ऊपर अगर मक्खी बैठ जाए वो मक्खी को नहीं उड़ा सकते। अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की ये पूजा करते हैं। और ये खाने के भी वो मोहताज, वो उठने बैठने की मोहताज, और ये भी कि उनके सामने अगर कोई चीज रख दें खाने के लिए वो खा नहीं सकते, और उनके सामने अगर कोई चीज उठाने को कहा जाए तो उठा नहीं सकते, उनको अगर चलने का कहा जाए तो चल भी नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो ये किस तरह के खुदा हो सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सब कुछ देखा कि इनके पास है, इनके बुतों के पास कान है जो उन्होंने बुत बनाए हुए थे, कान बनाए हुए हैं, आंखें बनाई हुई हैं, सब कुछ बनाया हुआ है, पूरे जिस्मानी आज़ा बनाए हुए हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। वो जिस्मानी आज़ा काम नहीं करते, सिर्फ बज़ाहिर तौर पर देखने और दिखाने के लिए हैं। हकीकत में वो कुछ भी नहीं है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लोग उनसे डर रहे हैं, ये लोग उनसे खौफज़दा हैं कि ये हमें नुकसान पहुंचा देंगे। हकीकत में सिर्फ बेजान पत्थर हैं।
जिन को अकल के अंधों ने और शौर फैर के अंधों ने अपना खुदा बना लिया है और मुश्किल कुशा हाजत रवा बना लिया है, ऐसे ही लोगों के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया है लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल व उलाइका हुमुल गाफिलून। ये लोग ऐसे हैं कि जिनके पास दिल तो हैं लेकिन ये सोचते नहीं, समझते नहीं। इनके पास आंखें हैं लेकिन ये देखते नहीं हैं। इनके पास कान हैं लेकिन ये सुनते नहीं हैं। इनके पास ये सारे इनके अज़ाब मौजूद हैं। फरमाया उलाइका कल अनआम, जो लोग ऐसी गफलत का मुज़ाहिरा करने वाले हैं, खुदा की सारी निशानियां देखने के बावजूद आंखें बंद किए हुए हैं, दिल के अंधे बने हुए हैं। फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये लोग जानवर हैं। पहले फरमाया ये लोग जानवर हैं, फिर फरमाया बल हुम अदल, बल्कि जानवरों से भी ये बदतर हैं। व उलाइका हुमुल गाफिलून, और ये गफलत में पड़े हुए लोग हैं, ये गफलत में पड़े हुए लोग हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाया था, बाप को समझाया, लोगों को भी समझाया, नसीहत की कि ये बुत परस्ती कुछ भी नहीं है, इसको छोड़कर खुदाए वहदहू ला शरीक के आगे सजदा रेज़ हो जाओ, उसके आगे सर को झुकाओ, उसके आगे सजदा करो, उसी को मुश्किल कुशा हाजत रवा मानो। पुराने अजीज में है कि वलक़द आतैना इब्राहीमा रुश्दहू मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन इज़ क़ाला लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून क़ालू वजदना आबाना लहा आबिदीन क़ाल लक़द कुंतुम व आबाउकुम फ़ी दलालिन मुबीन। बिलाशुबा हमने इब्राहीम को अव्वल ही से रुश्द व हदायत अता की थी, उसको हम पहले ही उसको रुश्द व हदायत वाला बनाया था और हम उसके जानने वाले थे। फरमाया हम कहने लगे, हमने अपने बाप को, अपने बाप दादा को जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दावत दी ना, जिनकी तुम पूजा करते हो, ये मुजस्समे, ये मूर्तियां, ये बुत, ये क्या है? अंतुम लहा आकिफून, ये क्या है जिनको तुम पूज रहे हो, जानते पूजते, जिनको तुम लिए बैठे हो। कहने लगे कि क़ाल लक़द कुंतुम आबाउकुम फ़ी दलालिन मुबीन, जब उन्होंने कहा ना कि क़ालू वजदना आबाना लहा आबिदीन, कि हमने अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते देखा है, इसलिए हम इनकी इबादत कर रहे हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि भाई ठीक है जरा मसलहत से काम ले लिया जाए, थोड़ी खामोशी इख्तियार कर ली जाए। अल्लाह के पैगंबर थे, सिर्फ अल्लाह से डरने वाले थे, सारी कायनात खिलाफ है, वक़्त का हुक्मरान भी खिलाफ है, बाप भी खिलाफ है। कहते हैं क़ाल लक़द कुंतुम अंतुम आबाउकुम फ़ी दलालिन मुबीन, तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में, तुम गुमराह लोग हो, क्योंकि वो शिर्क पर लगे हुए थे, काफिर थे, दीन से दूर थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको दीन की दावत पेश कर रहे थे। फिर वो आयत जो मैंने पहले तिलावत की और जिनका तर्जुमा पेश किया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो सारी बात भी अपने बाप के सामने की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहतों को ना बाप ने माना, ना कौम ने माना, और सब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुखालफत शुरू कर दी। सारे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप को सलाम किया, घर से निकल गए। क़ाल अस्सलामु अलैकुम अस्तग़फिरु लक रब्बी, कहा कि अब्बा जान मैं आपके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की फिर भी दुआ करूंगा। जाते जाते ये क्या है कि तुम्हारी बख्शिश की दुआ करता रहूंगा, मेरा रब जो है बड़ा मेहरबान है, मुमकिन है तुम्हें बख्श दे। अब मैं तुमको भी छोड़ा और तुम्हारे उन तमाम माबूदों को भी जिन्हें तुम खुदा समझते हो, खुदा समझकर उनकी पूजा करते हो, और अल्लाह के अलावा जिनको तुमने मुश्किल कुशा हाजत रवा बना लिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम कवाकिब परस्त भी थी, सितारों की भी पूजा करती थी, सिर्फ बुतों की नहीं पूजा करती थी, सितारों की भी पूजा करती थी। चांद सितारों को अपना माबूद समझती थी, सूरज को अपना माबूद समझती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चांद सितारों से भी अपना दामन बचा कर रखा, अपना दामन उनसे भी छुड़ाया और माबूद वाहिद की तरफ खुद भी अपने आप को लगाया, लोगों को भी उसी की तरफ दावत दी। रिश्ता या उबूदियत सिर्फ अल्लाह ही से जोड़ा, लेकिन इसके लिए इतना अंदाज, इतना अजीब इख्तियार किया कि चांद, सूरज और सितारों के आगे सरबसुद होने वाली कौम की गुमराही खुलकर सामने आ गई। तारों वाली रात थी, सितारे चमक रहे थे, एक सितारा ज्यादा चमक रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखकर जो ज्यादा रोशन और ताबनाक था,
اس ستارے کو دیکھ کر فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب فرمایا یہ میرا رب ہے، پھر لوگ اس کی طرف دیکھتے رہے، آپ اس طرف دیکھتے رہے۔ جب وہ مدد پڑ گیا، وہ ڈوب گیا، تو پھر کیا فرمایا؟ قال لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں اس کو رب نہیں مانتا، یہ تو ڈوب گیا، یہ تو کسی حکومت چل رہا تھا، یہ کسی کا غلام تھا، اس لیے غلاموں کی طرح گردش کر رہا تھا۔ اس کے بعد پھر کیا دیکھا؟ پھر دیکھا کہ چاند کو دیکھا کہ چاند ہے، چمک رہا ہے۔ فرمایا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اس کی روشنی، اس کی خونک، اس کی ٹھنڈک، اس کی رات، چاندنی والی رات، یہ سب ستاروں سے روشن، یہ سب ستاروں سے بڑا، یہ میرا رب ہے۔ اب چاند بھی آہستہ آہستہ جو منور تھا، روشن تھا، سحر کا وقت ہونے لگا، چاند دھندلا پڑنے لگا، مدد پڑنے لگا، ختم ہونے کے قریب آیا۔ پر یہ ڈوب گیا، یہ بھی ڈوبنا ہی تھا، چاند بھی ڈوب گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ لَئِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر میرے پروردگار نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں بھی گمراہ قوم کے ساتھ گمراہ ہو جاتا۔ میں اس کو بھی رب نہیں مانتا، یہ بھی رب نہیں ہے، یہ بھی ڈوب گیا ہے۔ اب دن آ گیا، سورج نکل آیا، دن کے وقت سورج نکل آیا، اس کی روشنی کی وجہ سے ساری جگہ روشنی ہو گئی۔ معلوم ہے چاند سے سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب دن نکل چکا تھا، آسمان پر پوری آب و تاب کے ساتھ روشنی ہو گئی تھی، اور لوگوں کے گھروں تک بھی روشنی پہنچنی شروع ہو گئی۔ سورج چاند سے زیادہ کائناتی عالم کے لیے روشنی اور روشنی کا منبع اور مرکز ہوتا ہے، کہ اس کی روشنی چاند سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی روشنی کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے، یہ ستارے سے بھی بڑا ہے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے، مجھے یہ بڑا نظر آ رہا ہے، اس کی روشنی بھی سب سے زیادہ ہے، پوری کائنات کے مرکز و محور کو اس کی روشنی نے گھیرا ہوا ہے، یہ میرا رب ہے۔ اب دن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ختم ہونے کے قریب پہنچا، عصر کا وقت ہوا، اس کے بعد کا وقت ہوا، سورج قریب ہوا کہ سورج غروب ہو جائے، اور سورج اپنا منہ چھپا کر جب مغرب میں روپوش ہو گیا، سورج جب غروب ہو گیا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجبور ہے، یہ بے کس بے یار مددگار ہے، بے کس ہے، یہ مجبور چاند، یہ مجبور ستارے، یہ مجبور سورج، یہ کسی حکم کے پابند ہیں، ان کا اپنا حکم نہیں چل سکتا، یہ کسی کے غلام ہیں، اس لیے غلاموں کی طرح گردش کر رہے ہیں۔ فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے میری قوم، میں تمام سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان سے میں منہ پھیر لیتا ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، صرف منہ نہیں پھیرتا، اور میں نے اپنا رخ، اپنا منہ ان سب ہستیوں سے موڑ کر رب کائنات کی طرف کر لیا ہے، جو رب السماوات والارض ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اس کی طرف منہ اپنا کر لیا ہے، حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں نے یکسو ہو کر اسی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ یہ دعوت توحید تھی جو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دے رہے تھے، اور اس طرح کی مثالیں دے کر چاند کی، سورج کے، ستارے کے لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دے رہے تھے کہ لوگ اس طرح کر کے اللہ کی دین کی طرف آ جائیں۔ اب ایک اور موقع آیا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، میلے کا دن آ گیا، عرس کا دن آ گیا، عرس شریف۔ اب یہ سالانہ عرس شریف ہے، میلے کا دن ہے، لوگوں سب نے جانا ہے، سارے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہتے لگے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں میلے پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ انی سقیم، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، میں بیمار ہوں یا میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رک گئے، قوم چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑی ہاتھ میں لی اور قوم کا جو سب سے بڑا بت خانہ تھا اس کے اندر داخل ہو گئے، کلاڑی ہاتھ میں لے کر بڑے بت خانے کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے چڑھاوے کھانے موجود ہیں، بکرے چھترے موجود ہوں گے جیسے کہ آج کل لوگ رکھ کر آتے ہیں، بکرے چڑھاتے ہیں، کٹے چڑھاتے ہیں، اور بیل اور دیگیں اور چاول، یہ ساری چیزیں وہ سب کچھ کرتے تھے۔ یہ سارا کلچر وہی چلا آ رہا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں نا،
सारा वही तरीके कार, सिर्फ शख्सियतें बदल गई हैं, वो बुत थे, ये इंसान हैं। तो उन्होंने जब देखा कि बुत सारे इनके आगे खाने भी तरह तरह के मौजूद हैं, तरह तरह के खाने पड़े हुए हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तंजिया बुतों को खिताब किया। पता तो था कि ये सुन नहीं रहे, तंजिया उनको खिताब किया, बड़े गुस्से में थे कि ये कुछ भी नहीं है, लोग इनको बड़ा कुछ मान रहे हैं। फरमाया अला ताकुलून मा ला तंतिकून, और खाते क्यों ना होते, बोलते क्यों ना हो, मेरे साथ बात करो, मैं तुम्हारे इस खाने के अंदर आया हूँ, कुछ खाओ पियो, तुम्हारे आगे चीजें पड़ी हुई हैं, ये खाओ, क्यों नहीं खाते, तुम्हें क्या हो गया है, बोलते भी नहीं हो। फिर बड़े बुत को छोड़कर बाकी सारे जो बुत पड़े हुए थे उन सबको किसका हाथ तोड़ा, किसकी गर्दन, किसी की टांग, उनको तोड़ फोड़ करके उनकी अच्छी तरह उन बुतों की फिर क्या किया, जो बड़ा था बुत उसको छोड़ दिया, उसके से कुल्हाड़ी रख दी, उसके मोटे पर कुल्हाड़ी रख दी। अब जब कौम के लोग आए उनको पूछते तो थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बड़े साहब हो सकते हैं छोटों से नाराज हो गए, उनको इन्होंने कुछ मारा चारा हो कुल्हाड़ी के साथ। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आकर देखा कि कौन है जो हमारे बुतों के खिलाफ, इन बाबिया के खिलाफ बातें करता है। उन्होंने कहा कि फतयज़कुरुहुम इब्राहिम, एक आदमी है जिसको इब्राहिम कहते हैं। फिर उन्होंने बुलाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, बुलाकर पूछा अंता फालता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, हमारे माबूदों के साथ तुमने ये किया है, इनका हशर तुमने ये कर दिया है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त वो सवाल कर रहे थे, कौम का एक बड़ा मजमा था, मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त भी अल्लाह ताला ने मजमा इकट्ठा कर दिया, जब फिरौन ने सारे उनको बुला लिया जो जादूगर थे, और कौम सारी को भी मेले के दिन इकट्ठा कर लिया, मूसा अलैहिस्सलाम को दावत देने का मौका मिल गया, यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दावत देने का मौका मिल गया, सारी कौम इकट्ठी थी, सारे लोग इकट्ठे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारी कौम के सामने, उनके काहन भी मौजूद थे, बदरी पेशवा भी मौजूद थे, सरदाराने कौम भी मौजूद थे, लीडर मौजूद थे, सबके कान इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ लगे हुए थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब क्या जवाब देते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बुतों को बेहैसियत और बेवकूफ साबित करने का मौका आ गया है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज सभी लोग देख रहे हैं हमारे ये मिट्टी के बने हुए बुत ये कितने बेहकीकत हैं और बेजान और कितने कमजोर और लाचार और बेबस हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल फ़अलहु कबीरुहुम आज फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून, बल्कि इनके बड़े ने ये किया है, बल्कि अगर तुम इससे पूछो कि ये बुत किसने तोड़े हैं तो ये जवाब देगा, इससे पूछो कि क्यों नहीं जवाब दे रहा, इससे पूछो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात की ना, उस वक्त इन्होंने बड़ा अच्छा वार किया था। उन लोगों ने कहा तो जानना है कि बोलते को नहीं, तो जानते हैं बोलते नहीं है, तो कहता है कि इससे पूछो, हम इससे क्या पूछें, लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिकून, ऐ इब्राहिम तुम अच्छी तरह जानते हो ये बोलते नहीं है। उनका बोलते नहीं है तो मुश्किल कुशा कैसे होगे, हाजत रवा कैसे होगे, लोगों के सामने उनको बिल्कुल बेहैसियत और बेवकूफ करके उन्होंने पेश कर दिया और अपनी दावत लोगों के सामने पेश कर दी। तो इस तरह करके वो कौम समझ गई थी अंदर से, लेकिन जो आदमी ढीठ होता है ना वो मान कर भी नहीं मानता, अंदर से मान जाता है लेकिन फिर भी बजाय तौर पर अपनी बात को रखने के लिए नहीं मानता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक और इंशाअल्लाह आज और कुर्बानी के मुतालिक आयता जुम्मे में इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।